Good morning, students. So today we are going to end this chapter. So let's start the last concept of this chapter. Listen, till now we discussed that democracy is a good form of government. In the democracy, there are certain merits and there are certain demerits. So in front of you on the screen, you can see these are the arguments in favor of democracy. Now, let me move to one more concept. Till now, we discussed the definition of democracy is that democracy is a rule of people. What is democracy? Democracy is a rule of people. But the question is, do you think that people rule in democracy? No, I don't think so. Do you take any decision? No, you are not taking any decision. All the decisions are taken by the government, right? Although the government is elected by you, but you are not the person who is taking decision, right? So it means that you are choosing a leader, a representative, and that representative on behalf of you, if you are electing one person A, these are the people of country. These people electing one person, a leader A. Now this A, who is the representative of people, he will rule the country on behalf of majority of people, right? Now the question is, what is the need of electing these people, this leader? Why we can't rule us? हम सभी लोग एक साथ रूल क्यों नहीं कर सकते? Can we do it? Can we take decision for country? No. There is a problem because in modern democracy, the population of country is very large. If we talk about India, right, the population of India is approximately 135 crore. Do you think that all these 135 crore people can sit together and can take decision? No, right? So that is why all these people elect one ruler or one representative, that is our prime minister or our chief minister, right? Now, on behalf of all these people, the prime minister or ministers takes the decision, right? This type of system is called as representative democracy. What is the meaning of representative democracy? It is a democracy in which the representative of people rule the country on behalf of the citizens. ठीक है? So पहला रीजन क्या है? हम लोग डायरेक्टली डिसीजन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम सभी लोग 135 करोड़ लोग एक साथ बैठ के कोई डिसीजन ले सके, राइट? अगर हम एक साथ बैठ भी जाते हैं, अगर हम भविष्य में कोई एक ऐसा स्टेडियम बना भी लेते हैं कि जहां पर सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं 135 करोड़, फिर भी इतना लोग मिलके डिसीजन लेना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा, राइट और नॉट? क्योंकि कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टेक डिसीजन, राइट? और अगर डिसीजन, अगर हम दूसरा कारण ये भी है कि ऑल द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम और डिजायर और स्किल टू टेक पार्ट इन द डिसीजन. सो हर एक डिसीजन में लोग क्या सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं करेंगे. उनके पास टाइम नहीं है, किसी को जॉब करने जाना है, किसी को डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है, किसी के पास स्किल्स नहीं है, लिटरेट नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो सही है क्या गलत है, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? वी आर फॉलोइंग द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, राइट? नाउ जब हम अपने कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ लीडर ही करेंगे. We need to be vigilant, right? What the leaders are doing, we have to keep our eye open, right?
ऐसा नहीं कि हमारा लीडर को हमने चुन के छोड़ दिया, वो जो कर रहा है वो करने दे रहे हैं, नहीं। वी हैव टू लुक एट द लीडर कि वो डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो यू कैन सी, लुक एट हियर दिस कार्टून. In this cartoon, it is showing that now our country is celebrating the 50 years of independence, right? So यहाँ पर देखो एक गरीब आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, चेयर पे बैठा हुआ है, टीवी चल रहा है, और टीवी में जो लीडर्स है वो क्या बोल रहे हैं, यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, ठीक है, सभी लोग यूनाइट कर दिया हमने, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर दिया, इंडस्ट्री को बढ़ा दिया, हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा है, राइट, ट्रेड, फॉरेन कोलैबोरेशन, एक्सपोर्ट इंक्रीज, राइट, ये सब कुछ हमने कर दिया, कंप्यूटर ला दिया, मोबाइल ला दिया, फोन ला दिया, ठीक है, पेजर्स ला दिया. 10, ये सब कुछ लाने के बाद अब नाउ वी आर डिटरमाइंड टू रिमूव पॉवर्टी, provide drinking water, shelter, food, school and hospital. So it is a mockery, right or not? Government should do first all these things, right or not? Government को पहले क्या करना चाहिए? Government को पहले poverty remove करना चाहिए, पहले shelter देना चाहिए, food, schools, ये सारी चीजें बनाना चाहिए, तब जाके ये सारी चीजें करना चाहिए, right or not? लेकिन गवर्नमेंट ने पहले ये कर दिया, तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द सिटीजन्स ऑफ कंट्री इज स्लीपिंग. देखो ये सो रहा है, राइट और नॉट, ठीक है. सो द सिटीजन मस्ट बी विजिलेंट. सिटीजन को क्या होना चाहिए? विजिलेंट होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ में एक झंडा ले लिया है, तिरंगा झंडा, और इस तरह से सो गए, ठीक है. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन टू लुक द वर्क ऑफ लीडर्स, देन ओनली आवर कंट्री विल डेवलप, राइट. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? अभी तक हमने जो डेमोक्रेसी को देखा, वी लुक्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट. हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है, क्या, कौन सा मोनार्की है, कौन सा डेमोक्रेसी है, सिर्फ यही देखा. बट डू यू थिंक द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन आवर लाइफ? फॉर एग्जाम्पल, just read these lines. We are a very democratic family. ठीक है, कोई एक बच्चा बोल रहा है कि हम बहुत ही डेमोक्रेटिक फैमिली हैं. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. Right? My opinion matters as much as my father's. So ये क्या बोल रहा है कि मेरा जो फैमिली है वो डेमोक्रेटिक है. क्यों? क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई डिसीजन लिया जाता है, हम लोग एक साथ बैठते हैं, और बैठने के बाद सभी लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं, राइट, और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है. तो मेरा जो ओपिनियन होता है उसका वैल्यू उतना ही है जितना कि हमारे फादर का ओपिनियन का, राइट और नॉट? डू यू थिंक कि ये चीज हमारे फैमिली में होना चाहिए, राइट? टेक एन एग्जांपल कि हमारे घर में आज क्या खाना बनना है, इस डिसीजन को लेने के लिए क्या हमें फैमिली मेंबर से बात करनी चाहिए? क्या सभी लोगों का ओपिनियन मैटर करना चाहिए? किसी को इडली खाने का मन है, किसी को डोसा खाने का मन है, तो हो सकता है सभी लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे क्या बनना चाहिए, तो फाइनली एक डिसीजन पे पहुंचा जा सकता है. बट अगर किसी फैमिली में कोई एक मेंबर डोमिनेट कर रहा है, कैन वी से दैट इट इज अ डेमोक्रेटिक फैमिली? मान लेते हैं कि आपके फादर या फिर आपके छोटे ब्रदर या सिस्टर क्या बोल रही, आज इडली बनेगा, आपको इडली खाने का मन नहीं है, लेकिन आपके घर में क्या बनेगा? इडली बनेगा. क्यों? क्योंकि आपका छोटा भाई बोल रहा है. तो व्हाट इज इट? इज इट डेमोक्रेटिक फैमिली? नो, राइट और नॉट? तो ऐसे सिचुएशन में क्या घर पे कोई भी एक डिसीजन लेना है तो कैसे लेते हैं? हम साथ में मिलके ले सकते हैं. सो दिस इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक and ask question in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मैं वैसे टीचर को पसंद नहीं करता हूँ जो स्टूडेंट को बोलना नहीं देता है क्लास में, ठीक है, या क्वेश्चन नहीं पूछने देता है. मुझे वैसे टीचर पसंद है जिनका टेम्परामेंट डेमोक्रेटिक है, ठीक है, जो डेमोक्रेसी में सभी को बोलने का अधिकार होता है, राइट और नॉट? तो ये क्या बोल रहा है कि वैसा टीचर मुझे पसंद है जो क्लास में बच्चे को बोलने देता है या क्वेश्चन पूछने देता है, राइट. तीसरा है वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी? क्या बोल रहा है कि जो पार्टी हो रहा है इस पार्टी में
सब कुछ किसने डिसाइड किया? एक लीडर ने और उसकी फैमिली ने। तो ये कैसे एक डेमोक्रेटिक हो सकता है, राइट और नॉट? सो इट मीन्स दैट we should not talk about democracy in our government only. We should talk about in our real life also, that how we are behaving, how are we following the rules and principles of democracy or not, right? So एक democratic decision किसको कहते हैं? जहां पर कि a democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by the decision. What does it mean? कि डेमोक्रेटिक में डिसीजन कैसे होता है? जो भी डिसीजन लिया जाएगा, राइट, उन सभी लोगों के साथ मिलके लिया जाएगा जिसके ऊपर उस डिसीजन का इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट और नॉट? आपके फैमिली मेंबर में अगर ये 6 लोग हैं, ठीक है, और डिसीजन लिया जा रहा है कि खाना क्या बनना है, फूड क्या बनना है, राइट, अगर किसी एक मेंबर के कहने पर बन जाएगा तो ये खाना किसको खाना है? सभी को खाना है, राइट और नॉट? तो ये खाना का इफेक्ट किस पर पड़ेगा? सभी पर पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में सभी से पूछ के खाना बनना चाहिए, राइट और नॉट, कि व्हाट शुड बी द डिश फॉर टुडे, राइट? तो इस तरह से डेमोक्रेटिक डिसीजन लिए जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो है हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने बात किया था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज मोनार्की। हमने बात किया था डेमोक्रेसी क्या है और मोनार्की क्या है। अब हम बात करेंगे गुड डेमोक्रेसी की, ठीक है? तो 3 तरह के डेमोक्रेसी हम फॉर्म कह सकते हैं। पहला तो मोनार्की, ठीक है, दूसरा डेमोक्रेसी और तीसरा गुड डेमोक्रेसी। डिफरेंस क्या है तीनों में? देखो, मोनार्की में वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, डेमोक्रेसी में क्या मिलेगा? वोटिंग राइट मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर हमें और इससे ज्यादा अच्छा करना है तो क्या क्या मिलेगा? देखो ध्यान से। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। इस कंट्री को हम तभी डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं जब इस कंट्री में एक भी दिन ऐसा नहीं आएगा जबकि कोई भूखे बेड पर सो जाएगा, राइट और नॉट? कोई आदमी ऐसा न रहे जो कि भूखे रह जाए। इन अ डेमोक्रेसी every citizen must be able to play equal role in decision making, ठीक है? फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, ठीक है? अब देखो, एक डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन को डिसीजन लेने का अधिकार है, राइट और नॉट? बट ये डिसीजन कैसे लिया जाता है? हाउ वी टेक डिसीजन? वी टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? कि आपको घर से कोप्पल स्कूल जाना है, राइट? कैसे जाना है? पैदल जाना है या फिर गाड़ी से जाना है? ये डिसीजन आपको लेना है। तो इस डिसीजन को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ माय स्कूल फ्रॉम माय होम। अगर ये ज्यादा डिस्टेंस है देन वी विल गो बाय व्हीकल। अगर ये कम डिस्टेंस है देन वी कैन गो बाय वॉक। अगर ये इन्फॉर्मेशन ही आपके पास नहीं है कि मेरा स्कूल कितना दूर है, तो डू यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू टेक राइट डिसीजन? नो। It means that in a democracy, if you are giving right to vote, then you must give certain types of information to the people. अब देखो, हमें अगर वोटिंग करना है, 4 लोग हैं, ए बी सी डी, तो हमें इन चारों के बारे में पता होना चाहिए, राइट और नॉट? क्या पता होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सी है ये कोई क्रिमिनल है, या कोई बी जो है वो काफी ज्यादा करप्ट पर्सन है। ये इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी तो हम वोट कर सकते हैं राइट पर्सन को। अगर हमें पता चले, इन्फॉर्मेशन जब मिले, अगर हमें इन्फॉर्मेशन ना मिले और बाद में पता चले हमने बी को वोट कर दिया, ठीक है, पर्सन बी को वोट कर दिया और बाद में पता चला कि ये पर्सन क्या था? करप्ट था, तो हमारा डिसीजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, राइट और नॉट? इट मीन्स दैट every citizen must be able to get the information in a democracy, right? So ये डेमोक्रेसी का ब्रॉडर फॉर्म है, राइट और नॉट? डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें भी होनी चाहिए जो कि कई सारे कंट्री में नहीं है। सो अगर हम इन सारी चीजों को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा? पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगी, ठीक है? पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर कि कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो भूखा नहीं सोता है, राइट और नॉट? सो इट मीन्स दैट कि डेमोक्रेसी में हम क्या कर सकते हैं? डेमोक्रेसी का
जो एक्सपेक्टेशन है, जो हम डेमोक्रेसी को डे बाय डे और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आज डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि सभी को राइट टू वोट मिल जाए, राइट टू इक्वालिटी मिल जाए, इसी को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हम क्या बोले, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी के साथ साथ सभी लोगों को खाना मिले, सभी लोगों को इनकम मिले, सभी लोगों को एजुकेशन मिले, ठीक है, तो इसको हम डेमोक्रेसी कंसिडर करेंगे। So that means the definition of democracy can be expanded, right? So this is the meaning of, broader meaning of democracy, right? So I hope you understood this chapter. So thank you for today. We will meet tomorrow with new chapter.